اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ ساری رات دعاؤں میں روتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، مگر ان کی تقدیر جیسے پتھر بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ بس خاموشی سے درود پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی درود ابراہیمی اور درود شریف میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے اوراق پلٹ دے؟ یا یہ سب صرف ایمان کا ایک فریب ہے، ایک یقین کا جادو؟ آج میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، اگر تم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے تو تمہاری دعا، تمہارا یقین اور تمہاری تقدیر تینوں بدل جائیں گے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس راز کی جو قسمت کے تالے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالو۔ کتنی بار تم نے چاہا کہ حالات بدل جائیں، کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہ وہ چیز مل جائے جو تمہارے نصیب سے چھن گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور تم نے سوچا شاید میری تقدیر ہی ایسی ہے۔ مگر میں تمہیں آج ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس نہ گھر تھا، نہ روزگار، نہ آس۔ دن گزرتے گئے، حالات بگڑتے گئے۔ لوگ کہتے تیری تقدیر بند ہے، تیرے نصیب میں کچھ نہیں۔ وہ ہر رات ایک ہی سوال کے ساتھ سوتا، یا اللہ، کیا میری تقدیر کبھی بدلے گی؟ ایک رات کسی بزرگ نے اسے کہا، بیٹا، دعا ضرور مان، مگر پہلے درود پڑھ، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دعا کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے وضو کیا، خاموشی سے بیٹھا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ نہ آواز بلند تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس دل سے نکلتا ہوا ہر لفظ۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، دوسری رات بھی نہیں، لیکن تیسری رات کچھ بدل گیا۔ اس کے اندر ایک سکون اترا، جیسے دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر کچھ دنوں بعد اچانک ایک دوست نے پرانی بات یاد دلائی اور اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ پھر رزق بڑھا، پھر عزت ملی، اور آخر میں وہ کہنے لگا، میں نے اپنی تقدیر کو درود سے بدلتے دیکھا ہے۔ دیکھو، درود صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کی سمت بدلنے کا عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ، میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں تاکہ تو میری قسمت کو بہتر کر دے۔ اور یوں درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں بدلتی ہیں، اس کا یقین بدلتا ہے، اور اس کی دنیا بھی۔ اب سوچو، کیا درود میں واقعی تقدیر بدلنے کی طاقت ہے، یا درود پڑھنے والا خود بدل جاتا ہے اور وہی تبدیلی اس کی تقدیر بدل دیتی ہے؟ یہی راز آج ہم کھولیں گے، کیونکہ تقدیر ہمیشہ پتھر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دل کے ایک درود سے نرم ہو جاتی ہے، اور اگلے لمحے تم سمجھو گے کہ درود صرف ذکر نہیں بلکہ نصیب کی کنجی ہے۔ چلو اب بڑھتے ہیں اس سفر کے اس حصے کی طرف جہاں تقدیر اور درود کا رشتہ کھلنے والا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ درود ابراہیمی اور درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دو نوری راستے ہیں جو سیدھا اللہ کے محبوب تک لے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے ہوئی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ کہ یا اللہ، میرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھ، میری اولاد میں وہ نبی پیدا فرما جو رحمت بنے، جس کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ جڑا رہے۔ اور پھر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا لباس پہنا دیا۔
यूं दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद बना जिसमें 2 अजीम नबियों का जिक्र इकट्ठा हुआ। और दुरूद शरीफ वो खजाना है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतौर तोहफा दिया। जब एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मैं अपनी तमाम दुआएं दुरूद में बदल दूं तो क्या मेरा मसला हल हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये वो जुमला था जो जमानों को हिला गया, क्योंकि यहां दुरूद सिर्फ इबादत नहीं रहा, ये एक दरवाजा बन गया, तकदीर के बदलने का दरवाजा। अब सोचो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी तो उनकी नस्ल में वो नबी पैदा हुए जिन पर दुरूद पढ़ने से दिल रोशन हो जाते हैं। और जब कोई मोमिन आज दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो वो दरअसल वही दुआ दोहराता है जो एक नबी ने अपनी उम्मत के लिए मांगी थी। कितनी हैरत अंगेज बात है ना? तुम एक ऐसा दुरूद पढ़ते हो जिसमें एक नबी की दुआ छुपी है और दूसरे नबी की रहमत। एक दुरूद 2 जहानों का नूर। और दुरूद शरीफ वो मोहब्बत का दरिया है जिसकी लहरें सिर्फ जबान से नहीं, दिल से उठती हैं। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके अल्फाज जमीन पर नहीं रहते, वो सीधे अर्श तक पहुंचते हैं और फरिश्ते कहते हैं, ये वो जबान है जिसने महबूब खुदा का नाम लिया, उसकी तकदीर को रहमत के करीब कर दो। अब जरा एक लम्हा रुको और दिल में सोचो, अगर नबियों की दुआएं तकदीर बदल सकती हैं तो उन पर भेजा जाने वाला दुरूद क्यों नहीं बदल सकता? क्या मुमकिन नहीं कि तुम्हारे नसीब के औराख भी इसी दुरूद के वसीले से पलट जाएं? मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाना चाहता हूं, 2 ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़कर अपनी तकदीर बदलते देखी। पहला शख्स एक मजदूर था। हर रोज धूप में काम करता, पसीने में डूबा रहता। जिंदगी में ना आसाइश थी ना सुकून। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हर सांस के साथ दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले। पहले वो हंसा, फिर दिल के किसी कोने ने कहा, कोशिश करके देख। चंद महीने गुजरे और एक दिन वही मजदूर एक कारोबार का मालिक बन गया। वो कहता था, मैं नहीं बदला, मेरी तकदीर बदली, और दुरूद उसका जरिया बना। दूसरी कहानी एक औरत की है जिसने बरसों औलाद के लिए दुआएं की, मगर सब बेअसर। एक रात उसने रोकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरा नसीब बंद है तो उसे दुरूद के सदके खोल दे। वो हर नमाज के बाद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रही। चंद महीने बाद अल्लाह ने उसे औलाद अता की और उसने रोते हुए कहा, यह दुरूद नहीं था, यह तकदीर का दरवाजा था जो खुल गया। देखो, दुरूद तकदीर को जबरदस्ती नहीं बदलता, यह दिल के यकीन को बेदार करता है। और जब दिल बदलता है, तकदीर खुद रास्ता बदल लेती है। दुरूद वो अमल है जो बंदे को उस मकाम पर ले जाता है जहां वो कह सकता है, ऐ अल्लाह, अब मैं नहीं बोल रहा, ये तेरे महबूब का जिक्र बोल रहा है, अब दरवाजे बंद न रखना। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम देखेंगे कि दुरूद किस तरह हकीकत में इंसान की जिंदगी के रास्ते बदल देता है, कैसे ये अमल वक्त और दिल के यकीन के साथ इंसान के मुकद्दर को नई रोशनी दे देता है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मुकाम पर ले आती है जहां सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, मगर तकदीर जैसे एक पत्थर की दीवार बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीवार नहीं तोड़ते, सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं और दीवार खुद रास्ता बन जाती है। पहली कहानी एक ताजिर की है। वो खुशहाल था, कारोबार चलता था, घर भरा हुआ था, मगर एक दिन सब बदल गया। कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने पीठ दिखाई, कर्ज इतना बढ़ गया कि उसने खुद को कमरों में कैद कर लिया।
दिन गुजरते गए, उम्मीद टूटती गई। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। अचानक उसके जहन में एक जुमला आया, दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, दरवाजे खुल जाएंगे। वो उठा, वुजू किया और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दिन दिल नहीं लगा, मगर वो रुका नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। फिर अचानक एक दिन उसके पुराने ग्राहकों में से एक ने फोन किया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहता हूं। फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा। कुछ ही महीनों में वही ताजिर जिसने हार मान ली थी, अब कहता था, मैंने कारोबार नहीं संभाला, दुरूद ने सब संभाल लिया। कभी कभी तकदीर नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है और फिर वो अपनी तकदीर बदल लेता है। दूसरी कहानी एक मां की है, जिसका बेटा एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद बहुत कम है, दुआ करो। वो औरत अस्पताल के कोने में बैठकर रो पड़ी। फिर उसने सर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने महबूब पर दुरूद भेजती हूं। अगर ये दुरूद तेरे महबूब तक पहुंचे तो मेरे बच्चे को वापस कर दे। फिर उसने रोते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर सिर्फ दुरूद, सिर्फ आंसू। सुबह हुई तो डॉक्टर हैरान थे, दिल की धड़कन वापस आ गई है। कुछ दिनों में वो बच्चा चलने लगा। मां ने सजदे में गिर कर कहा, मैंने दुआ नहीं की थी, मैंने दुरूद पढ़ा था और दुरूद ने मेरे लिए दुआ बनकर तकदीर बदल दी। कभी कभी तकदीर नहीं बदलती, अल्लाह दिल के यकीन को बदल देता है और यकीन तकदीर से बड़ा हो जाता है। तीसरी कहानी एक आलिम दीन की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर लम्हा दुरूद में रहते थे। लोग उनसे पूछते, हजरत, आप हर वक्त दुरूद क्यों पढ़ते हैं? वो मुस्कुराकर कहते, दुरूद पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, बस कभी देर होती है और वो देर भी उसके हक में बेहतर होती है। एक शागिर्द ने उनसे पूछा, क्या दुरूद वाकई तकदीर बदल देता है? वो बोले, दुरूद तकदीर को बदलने की इजाजत नहीं मांगता, दुरूद तो तकदीर लिखने वाले के दिल को बदल देता है। क्या खूब कहा। दुरूद सिर्फ जमीन पर नहीं पढ़ा जाता, ये अर्श पर लिखा जाता है। ये तीनों कहानियां शायद मुख्तलिफ लगती हों, मगर उनमें एक बात मुश्तरक है। दुरूद ने सिर्फ हालात नहीं बदले, लोगों का दिल, उनका यकीन और उनकी सिमत बदल दी। और जब दिल बदलता है तो तकदीर खुद नए रास्ते चुन लेती है। कभी सोचो, अगर दुरूद एक ताजिर के कारोबार को, एक मां के दुख को और एक आलिम के यकीन को नूर में बदल सकता है, तो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता? अब सवाल यह है, ये दुरूद आखिर कैसे तकदीर बदल देता है? इसके अंदर वो कौन सी ताकत है जो इंसान की किस्मत के धागे तक पहुंच जाती है? आओ अगले हिस्से में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि दुरूद की वो रूहानी ताकत कहां से जन्म लेती है। दुरूद ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की वो सांस है जो अर्श तक जा पहुंचती है। लोग समझते हैं दुरूद सिर्फ पढ़ा जाता है, मगर हकीकत यह है कि दुरूद दुआ की रूह है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम अपनी दुआ को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्लाह तक पहुंचाते हो। सोचो जरा, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है जो नबी के वसीले से उठती हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, दुरूद दुआ की कुंजी है, जो उसे पढ़ता है उसकी हाजत रोकी नहीं जाती। क्या खूबसूरत हकीकत है।
हम दुआ के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दुरूद वो चाबी है जो वो दरवाजा खोल देती है। ये बात समझो कि दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं, एक रूहानी तवानाई है। जैसे मिट्टी में पानी जाए तो बीज उगता है, वैसे दिल में दुरूद जाए तो नसीब उगने लगता है। दुरूद दिल की जमीन को नर्म करता है। जहां पहले सख्ती, गुस्सा और गम था, वहां अब नूर, रहमत और सुकून उतरने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं तकदीर तो लिखी जा चुकी है। हां, लिखी जा चुकी है, मगर दुरूद लिखने वाले के दिल को बदल देता है। दुरूद अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है, और जब रहमत बदलती है तो तकदीर भी नर्म पड़ जाती है। कभी कभी अल्लाह तकदीर नहीं बदलता, बल्कि बंदे को उस लायक बना देता है कि वो नई तकदीर के काबिल हो जाए। दुरूद एक ऐसा राज है जो आसमान और जमीन के दरमियान रब्त पैदा करता है। ये तुम्हें अपने नबी के करीब ले जाता है, और जब बंदा नबी के करीब आता है तो अल्लाह खुद उसके करीब हो जाता है। याद रखो, दुरूद पढ़ने वाला दरअसल अपनी रूह को पाक करता है। वो अल्लाह के हुजूर झुकने से पहले अपनी जबान, अपने दिल और अपने ख्याल को पाक करता है, और यही पाकी तकदीर की तब्दीली की बुनियाद बनती है। एक लम्हे के लिए खामोशी से सोचो, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहे, तुम दरअसल अपने नसीब के धागे को रोशनी से बुन रहे होते हो। और वो धागा जब मोहब्बत रसूल के नूर से चमकने लगता है तो अंधेरी तकदीर भी जगमगा उठती है।